5 عورتوں کو نیند نہیں آ سکتی۔ 5 قسم کی عورتیں جتنا مرضی سونے کی کوشش کریں، جتنا مرضی آنکھیں بند کریں، ان کو نیند آ ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 5 عورتوں کو رات کو نیند نہیں آتی۔ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آخر وہ 5 عورتیں ہیں کون سی؟ ان 5 عورتوں میں سے پہلی عورت یہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کے دل کا اضطراب اتنا گہرا ہوتا ہے کہ نیند ان سے ہمیشہ روٹ جاتی ہے؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ 5 عورتیں کون سی ہیں جن کی راتیں قرار سے خالی رہتی ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں اس پردے کو ہٹانے کے لیے جس کے پیچھے وہ 5 عورتیں چھپی ہیں جنہیں رات کا چین نصیب نہیں ہوتا؟ ناظرین کرام، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کچھ عورتیں رات کے گہرے سکوت میں بھی قرار نہیں پا سکتی؟ ان کی آنکھیں بظاہر بند ہوتی ہیں مگر دماغ کے دریچے مسلسل کھلے رہتے ہیں۔ پلکوں پر نیند کا چھونا اترنے سے انکاری ہوتا ہے اور دل کی دھڑکنیں بے وجہ تیز ہو جاتی ہیں۔ یہی کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب روح پر وہ بوجھ چڑھ جائے جو ضمیر کو سکون نہ لینے دے۔ روایت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ 5 عورتیں ایسی ہیں جنہیں رات کا آرام نصیب نہیں ہوتا۔ یہ محض کوئی قصہ نہیں بلکہ زندگی کے ان گوشوں کی علامت ہے جہاں انسان کے اندر کا شور اسے سونے نہیں دیتا۔ جدید سائنس میں بھی نیند کی اہمیت پر بار بار زور دیتی ہے۔ برطانیہ میں ہونے والی ایک بڑی تحقیق میں 5 لاکھ افراد کے اعداد و شمار سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جو لوگ نیند کے مسائل کا شکار ہوں ان میں قبل از وقت موت کا خطرہ 87% تک بڑھ جاتا ہے۔ کیلیفورنیا یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق ایک ہی رات کی نیند کی کمی ذہنی دباؤ اور خوف کو 30% تک بڑھا سکتی ہے۔ گویا نیند اللہ کی طرف سے ایک ایسی نعمت ہے جو ذہن، دل اور جسم کو تازگی بخشتی ہے، مگر جب دل کا بوجھ زیادہ ہو جائے تو یہ نعمت ہاتھ سے پھسل جاتی ہے۔ ناظرین کرام، اب ان 5 عورتوں کے بارے میں جانتے ہیں جن کی پلکوں سے نیند کا چراغ بجھ جاتا ہے۔ سب سے پہلی وہ عورت ہے جو دل میں کسی کے خلاف جان لینے کا ارادہ پال لے۔ قتل کا منصوبہ انسان کے وجود پر ایک سیاہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے اور وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ کا غضب اس پر ہوگا اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ ایسی عورت کے دل میں وہ خوف اور بے چینی جنم لیتی ہے جو سکون خواب کو جلا دیتی ہے۔ ضمیر کے کونے میں چھپی ہوئی لرزش اسے یاد دلاتی رہتی ہے کہ وہ جس راستے کا انتخاب کر رہی ہے وہ نہ صرف ایک انسان بلکہ پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جہاں رات کی خاموشی گواہ بن جاتی ہے اور روح پر ہلکی سی دستک دیتی ہے کہ پلٹ آؤ، اس اندھی راہ سے واپس آؤ۔ دوسری وہ عورت ہے جو دولت کے انبار پر بیٹھی ہو مگر اعتماد سے خالی ہو۔ وہ خزانے جمع کرتی ہے مگر اس کے دل کی زمین پر بد اعتمادی کے کانٹے اگاتے ہیں۔ اسے لگتا ہے کہ کوئی اس کی محنت لوٹ لے گا یا جو شخص قریب ہے وہ صرف فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ قارون کی کہانی ہر دور میں یاد دلاتی ہے کہ دولت اگر عاجزی نہ لائے تو غرور اور خوف انسان کو دیمک کی طرح چاٹ لیتے ہیں۔ جب عورت اپنے اثاثوں کی گنتی میں ہی الجھ جائے اور یہ فکر اسے سونے نہ دے کہ سب کچھ کھو نہ جائے تو نیند کی پناہ کہاں مل سکتی ہے؟ اصل سکون تب آتا ہے جب انسان دل کو یقین کے سہارے مضبوط کرے اور سمجھ لے کہ حقیقی محافظ صرف رب ہے، مال یا انسان نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک قدیم بستی کے کنارے ایک وسیع و عریض مکان تھا جس کے اندر خزانوں کے ڈھیر لگے تھے۔ وہاں سونے کے سکے، چاندی کے پیالے، قیمتی ریشم اور نایاب موتیوں سے بھری صندوقچیاں قطار در قطار رکھی تھیں۔ مکان کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ پرندے بھی ان پر بیٹھنے سے ڈرتے اور دروازے پر بھاری زنجیریں لٹک رہی تھیں۔
इस मकान में एक ऐसी हस्ती रहती थी जिसने अपनी जिंदगी के कई बरस दौलत जमा करने में लगा दिए थे। हर दिन उसके लिए एक ही मकसद रखना, खजाना बढ़ाना। और हर रात वो अपने ही खौफ के कैदी की तरह जागती रहती। उसने दौलत जमा करने के लिए जंगलों की खाक छानी, पहाड़ों की चोटियां छुई और समंदरों के किनारे से नायाब मोती निकाले। वो लम्हा हर लम्हा अपने दिल में यही सोचती कि जितना और समेटूंगी उतना महफूज रहूंगी। लेकिन जो जो खजाना बढ़ता गया, उसकी आंखों से नींद गायब होने लगी। उसे हर आहट में खतरा सुनाई देता, हर साया उसे चोर लगता और हर हवा के झोंके में उसे किसी साजिश की बू आती। एक रात जब चांदनी खिड़की के सुराखों से अंदर छन रही थी, उसने अपने कमरे के बीचों बीच रखे हुए संदूकों को घूरा। वो इतने ज्यादा थे कि कमरे की दीवारें उनके बोझ से झुकती महसूस होती थीं। उसके दिल में एक ख्याल आया, अगर ये सब मुझसे छीन लिया गया तो क्या होगा? उस सवाल ने उसकी सांस रोक दी। उसके वजूद के अंदर एक शोर मच गया और उस शोर में नींद का हर इम्कान दब गया। अगली सुबह वो मकान के पिछले हिस्से में गई जहां पर एक पुराना आईना लटका हुआ था। उसने अपनी आंखों में झांका तो वहां एक अजीब मंजर था। थकन की परछाइयां, माथे पर बल और होंठों के किनारों पर एक ना खत्म होने वाली बेचैनी। उसने महसूस किया कि उसके खजानों का बोझ दरअसल उसकी रूह पर है, ना कि सिर्फ उसके कमरे में। उसी दिन एक दरवेश वहां आ निकला। उसने मकान के बाहर बैठकर खामोशी से दुआ की, फिर कहा, दौलत ऐसी नदी है जो बहती रहे तो जरखेजी देती है, लेकिन अगर इसे रोक दिया जाए तो बदबू पैदा हो जाती है। तुमने नदी के पानी को कैद कर लिया है, इसलिए इसकी बदबू तुम्हारी नींद को मार रही है। वो दरवेश कुछ लम्हे खामोश रहा और फिर बोला, असल मुहाफिज सोना चांदी नहीं, असल मुहाफिज वो एतमाद है जो दिल में अपने खालिक पर होता है। ये अल्फाज उस हस्ती के दिल में किसी तेज चमकती रोशनी की तरह उतर गए। उसने पहली बार सोचा कि खजाने को बंद कमरों में रखने से शायद जिस्म तो मुतमईन हो जाए, लेकिन दिल को करार नहीं मिल सकता। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी दौलत के साथ साथ अपनी फिक्र को भी जंजीरों में जकड़े बैठी है। अगली रात उसने एक अजीब फैसला किया। वो अपने खजाने के चंद संदूक बाहर ले गई और उन्हें करीबी जरूरतमंदों में बांटना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला संदूक खोला, दिल के अंदर एक हल्की सी ठंडक उतरने लगी। हर सिक्के के साथ वो महसूस करती कि उसकी रूह का बोझ हल्का हो रहा है। कुछ ही दिनों में उसने सीख लिया कि देने में वो सुकून छुपा है जो किसी ताला बंद कमरे में नहीं मिल सकता। आहिस्ता आहिस्ता वो मकान रोशनी से भर गया। जंजीरें दरवाजे से हट गईं और हवा के झोंके अब खतरा नहीं लगते थे, बल्कि रहमत महसूस होते थे। उसने पाया कि असल दौलत सिर्फ वो नहीं जो हाथ में हो, बल्कि वो यकीन है जो दिल में उतर जाए। और जब दिल को यकीन मिल जाए तो खजाने ख्वाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, वो नींद के दुश्मन नहीं बनते। यूं इस हस्ती ने ये सच्चाई दरियाफ्त की कि एतमाद के बगैर दौलत बोझ है और एतमाद के साथ वो नेमत है। उस दिन के बाद जब भी रात का अंधेरा छाता, वो पलकें बंद करके एक पुरसुकून सांस लेती और कहती, अब मैं आजाद हूँ। और ये आजादी हर खजाना दुनिया से बढ़कर है। तीसरी वो औरत है जो जबान की काट से दूसरों के दामन चाक करे। वो लोगों के खिलाफ झूठ घड़े, इल्जाम लगाए या किसी की इज्जत पर वार करे। जब औरत अपनी गुफ्तगू के तवाजुन को खो दे तो उसकी बातें तीर की तरह चलती हैं, मगर हर तीर का जहर वापस उसकी अपनी रूह को भी लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीह फरमाई, जो किसी मुसलमान पर ऐसा इल्जाम लगाए जिससे वो बरी हो तो अल्लाह उसे जहन्नुम के खून और पीप में रखेगा, यहाँ तक कि वो अपने इल्जाम की सजा पाए। झूठ और बोहतान की आदत ना सिर्फ मुआशरती खराबी है, बल्कि दिल पर ऐसा बोझ डाल देती है जो सुकून कल्ब को जकड़ लेता है। जो औरत दूसरों के ऐब तलाश करती है और झूठ बोलकर इज्जतों से खेलती है, उसके लिए रात की नींद एक ख्वाब बनकर रह जाती है, क्योंकि जमीर का कांटा सुकून की गहराई में जाने नहीं देता।
चौथी वो औरत है जिस पर जिम्मेदारियों का बोझ पहाड़ों से ज्यादा भारी हो मगर वसाइल की टोकरी खाली हो। वो अपने अहले खाना, बच्चों, वालदैन या दूसरों के लिए फिक्रमंद रहती है, लेकिन जेब में वसाइल की कमी उसे बेबस कर देती है। हर माँ जानती है कि बच्चों की भूख, तालीम, बीमारी या मुस्तकबिल का अंदेशा दिल को किसी तरह कुचल देता है। जब सहारा कम हो और जिम्मेदारी का दरिया गहरा हो तो नींद आंखों से भाग जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल अमल यह है कि तुम अपने भाई को खुशी पहुंचाओ, उसका कर्ज अदा करो या उसे खाना खिलाओ। ये तालीम बताती है कि दूसरों के दुख बांटना अल्लाह के यहाँ पसंदीदा अमल है, मगर जो औरत खुद अपने वसाइल से महरूम हो उसके लिए जिम्मेदारी का बोझ लम्हा लम्हा दिल पर दस्तक देता है। वो रात भर ये सोचती है कि कल किस तरह अपने प्यारों के लिए आसानी पैदा करे। उसके ख्यालात तूफान की तरह जहन पर छा जाते हैं और ख्वाबों के दरवाजे बंद हो जाते हैं। ऐसे दिल के लिए अल्लाह के जिक्र में करार मिलता है। यकीनन अल्लाह के जिक्र ही से दिलों को इत्मीनान मिलता है। पांचवी वो औरत है जिसका दिल मोहब्बत की शिद्दत से जख्मी हो और जुदाई के खौफ ने उसके अंदर को जकड़ रखा हो। इश्क एक ऐसी रोशनी है जो दिल के कोनों को रोशन भी कर सकती है और अगर वो हद से गुजर जाए तो दिल को जला भी देती है। जुदाई के साए जब दिल पर पड़ते हैं तो जिंदगी का रंग मध्यम हो जाता है। कुछ लोग सब्र और यकीन से फासले सह लेते हैं, लेकिन कुछ के लिए मोहब्बत का बिछड़ना दिल के सुकून को जला देता है। वो माज़ी की यादों, मुलाकातों और अधूरे ख्वाबों के ताने बाने में उलझ जाती है। उसके आंसू रात के अंधेरे में छुप कर बहते हैं, मगर दिल का दर्द बढ़ता है। ऐसी औरत के लिए सबसे बड़ी पनाह अल्लाह के हुजूर दुआ है, ए दिलों के बदलने वाले, मेरे दिल को अपने दीन पर साबित रख। मोहब्बत में तवाजुन, ताल्लुकात में भरोसा और दिल की वाबस्तगी को रब के सुपुर्द करना ही वो रास्ता है जो नींद के चिराग को दोबारा रोशन कर सकता है। नाजरीन कराम, ये पांच औरतें सिर्फ कहानी का उन्वान नहीं बल्कि इंसानी जज्बात और माशरती रवैयों का अक्स हैं। जुर्म, दौलत का खौफ, जुबान की लग़ज़िश, वसाइल की कमी और मोहब्बत का कर्ब, ये सब ऐसे बोझ हैं जो दिल को थका देते हैं और सुकून छीन लेते हैं। नींद सिर्फ जिस्मानी थकन का इलाज नहीं, ये रूह के सुकून की अलामत है। जो दिल अल्लाह के जिक्र, नीयत की सफाई और अमाल की दुरुस्ती से खाली हो, वहां नींद भी बिखर कर रह जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जान लो कि जिस्म में एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो तो पूरा जिस्म दुरुस्त रहता है और अगर वो खराब हो तो पूरा जिस्म खराब हो जाता है। वो दिल है। लिहाजा जो औरत रातों का सुकून चाहती है उसे अपने दिल को रोशनी से भरना होगा, माफ करने का हुनर सीखना होगा और अपने रब के हुजूर आजिजी से झुकना होगा। जब ज़मीर पाक हो, दिल अल्लाह की याद से मामूर हो तो जिंदगी के तूफान भी पलकों पर नींद के गुलाबी रंग बिखेरने लगते हैं।